So in this lecture, we are going to cover chapter unit number 5 of GE course, Principles of Macroeconomics. So this unit has two chapters. One is a small section from Able chapter 7. It covers what is money, what are the functions of money, and next is a chapter from Blanchard, that is financial markets. This is chapter number 4. So now when we start the chapter, we in this lecture we will cover this one. This is a very small section and very easy section. The main part is this. So let's start with this. So first we start with the fact that people demand money. All of the people would demand certain amount of money. They would have a demand for money. Now they can keep this money either in the form of currency, either in the form of coins, or they can deposit this money in a bank account which are known as demand deposits. Okay. Now apart from this demand for money, what would happen is whatever would be left, so for example you have certain income, right? Apart from keeping a part of your income as currency, coins, and demand deposits, what you do is you will invest in bonds. So these are the basic assumptions we follow. In everyday scenario, obviously, apart from bonds, there are a lot of things where we invest. There are a lot of instruments where you keep money. But here we, for simplicity, for starting the discussion, we just assume that people hold money only in two forms. One is currency or in demand deposits, and we assume that these demand deposits do not offer any rate of interest. So they don't offer any rate of interest. So apart from keeping money as currency and demand deposits, the second thing is you keep money as bonds, and these bonds give you a rate of interest, I, right? So now a typical consumer has a choice how much money to keep as currency, coins, demand deposits. We will club all these as one component, and they pay how much in rate of interest? Zero. Other component is bonds, and these bonds pay a rate of interest of say I. So a person has a trade off whether to keep money here or here. Now, if he keeps more money here, so he can make more transactions. He can easily make transaction. He has more money for precautionary purposes. He has more money for transactions. On the other hand, if he keeps money here, he earns a rate of interest. So that means keeping more money here has a price. The price that he pays for keeping more of this is the rate of interest. And of keeping more money in bonds, he loses the liquidity that he has for transactions. So now with this kind of theory, we define a money demand function. What is money demand? Money demand is basically kitna paisa I am demanding to keep with myself. So now if my income is higher, I will need more money for the transactions. So that means higher the income, I will spend more, I will make more number of transaction. तो किसी भी इकोनॉमी की अगर इनकम ज्यादा होगी तो वो मनी की डिमांड ज्यादा करेगा. जब मैं मनी की डिमांड की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ इन सब कंपोनेंट्स की डिमांड की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिमांड फॉर बॉन्ड्स. ऑल्सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स ये सब चीज़ों की डिमांड कम होगी. तो यहाँ पर हम एक फंक्शन से डिफाइन करते हैं. एल आई मीन्स अगर आई ज़्यादा होता है तो ये जो एल आई फंक्शन है ये एक नेगेटिव फंक्शन है मनी डिमांड का, और ये वाई जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है. सो दैट मीन्स योर money की demand is increasing as income increasing, but as rate of interest rises money demand falls. इस फंक्शन के कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सपोज करो दिस इज वन मनी डिमांड फंक्शन. तो अगर आप इसमें देखो, अगर इनकम बढ़ रही है तो मनी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम होगी. तो जब मैं यहाँ एल आई बोलती हूँ इसका मतलब एनी फंक्शन ऑफ आई. आई डू नॉट मीन कि ये एल आई कैसे रिप्रेजेंट होगा, मल्टीप्लाई में होगा. ऐसा एक एग्जाम्पल है. इफ यू सी इन द बैक क्वेश्चंस, सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स आर maybe 2y minus 5i, right? Something like that. So there can be various examples of this money की demand function. And ये जो money की demand है हम किसके purposes के लिए कर रहे हैं? Transactions के लिए. मनी को करेंसी में रखना, कॉइन्स में रखना, या वो डिमांड डिपॉजिट्स में रखना जिसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर मनी. अब जैसे ही मनी की सप्लाई है, मनी की डिमांड है, वैसे ही मनी की सप्लाई है जो आरबीआई करता है. Now, if we try to
ड्रॉ दीज कर्व्स, हम इसको मनी का जो प्राइस है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ हम लिखेंगे मनी बैलेंसेस। तो अगर हम बोले कि मनी की डिमांड हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट, तो जो मनी की डिमांड है, हमने पता है कि ये फंक्शन में नेगेटिव रिलेशन है, तो मनी की जो डिमांड है इस केस में बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है तो लोग ज़्यादा पैसा जो है मनी में होल्ड करेंगे। तो ये जो मनी डिमांड फंक्शन है इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कब डाउनवर्ड स्लोपिंग है? जब वाई एक्सिस में मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड ऑन दिस एक्सिस आई रिप्रेजेंट मनी बैलेंसेस। ऑन द अदर हैंड, जब हम मनी सप्लाई को ड्रॉ करते हैं, इट इज ड्रॉन लाइक दिस। सो नाउ वेयर बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, it gives you the equilibrium rate of interest. Equilibrium rate of interest is that rate of interest where money की डिमांड, यानी कि जो मनी आप डिमांड कर रहे हो डिमांड डिपॉजिट्स के लिए, करेंसी के लिए, कॉइन्स के लिए, दैट इज इक्वल टू जो आरबीआई मनी की सप्लाई कर रहा है। दिस इज पार्ट नंबर वन। अब हमें इसी डायग्राम में बताना है कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, तो what would be the effect on equilibrium rate of interest? If there is an increase in money supply, what would be the effect on equilibrium rate of interest? So now let's see, if there is an increase in income, so income does not enter your money supply curve. Income enters here. So अगर Y बढ़ा तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। ROI यहाँ है, money balance is here. This is your downward sloping money demand curve. You shift it outward. This is for Y dash, यानी हमारा income level बढ़ गया. And your money supply remains the same. So in this case, what we see is that your equilibrium rate of interest rises. This is part number A. Part number B, if your money supply rises, this is the curve, money supply rises. So money supply curve shifts rightward. So इस case में हमारा equilibrium rate of interest falls. Don't forget to write what is there on the x-axis and y-axis. And in this case, even your equilibrium money balances, ये जो money balances हैं x-axis पे, these also rise. और ROI falls. In case में equilibrium money balances remains the same. So now this was about equilibrium interest rate in the money market. Now, in the previous section, we discussed that money ki supply was increasing or decreasing. Now, how does central bank controls the supply of money? By open market operations. So what the central bank would do is, it will either buy bonds or sell bonds to public. सो अगर सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स खरीद लिए तो अब क्या होगा? अब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके हम पैसे देते हैं, तो वो क्या करेगी? पब्लिक को पेमेंट करेगी करेंसी में। तो जब वो पब्लिक को पेमेंट करेगी करेंसी में, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी की बढ़ जाएगी। अगर दूसरा साइड, अगर वो बॉन्ड्स को सेल कर रही है, तो जब भी हम कोई चीज को सेल करते हैं, हमने बॉन्ड्स दे दिया और उसके बदले हमने पैसे ले लिए, तो करेंसी हमने पब्लिक से, we take currency from public, so that means money supply in this case falls. So if central banks wants to increase money supply, it will buy bonds, and if it wants to reduce money supply, it will sell bonds. So this is how central bank basically controls money supply. Now, next we move on to the bond market. This was how central bank controls the money supply. Now, in the bond market, let's understand few things. Okay, before moving on to the bond market, let's discuss the balance sheet of the central bank. Just a minute. Let's discuss the balance sheet of the central bank, that is RBI. So when we discuss the balance sheet of RBI, we know there is one asset side, there is one liability side. Assets में RBI will hold certain bonds.
सो जब उसके पास कुछ बॉन्ड्स हैं जो उसने बाय करे हैं, राइट, वी नो दैट जब मनी सप्लाई वो बढ़ाना चाहती है तो वो इट बाइज बॉन्ड्स. So when it buys bonds, and in return what happens, it sells, it gives the currency out in the market, right? Now if there is currency out in the market, any day you can come up with the currency, right? You say this is the basically this is the money. You can ask for gold from central bank, you can ask that take this currency and give me bonds, right? So you can do that. So that means जो currency है वो एक तरह की liability है जो central bank को पूरी करनी पड़ेगी. If you show the currency to the central bank, it will have to either give you dollars, whatever you are asking, you either it will have to meet the demand in terms of gold, either it will have to give you bonds, it is backed by certain things. So in this case, currency with public becomes one of the liabilities of the central bank. Apart from this, now what happens is when central bank gives money to the people, people deposit that in their accounts. When people deposit some money in the accounts, what would happen is commercial banks are required to keep certain amount of money with the central bank. This money is the reserves part and it is the liability of the central bank. So commercial bank कुछ पैसा उठाकर अपना आरबीआई के पास रख रहा है, तो आरबीआई को जब भी जरूरत कमर्शियल बैंक को पड़ेगी आरबीआई को वो पैसा वापस करना पड़ेगा. तो एक तरह का लाइबिलिटी है. सो दीज रिजर्व्स दैट आर केप्ट विद द either the commercial bank or the RBI out of the demand deposits. So this is the balance sheet of the RBI. Now in this case, अभी पुराने वाले केस में जब वो बॉन्ड्स बाय कर रही थी तो क्या हो रहा था, ये वाला एसेट साइड बढ़ जाएगा. लेकिन जब वो बॉन्ड्स बाय करेगी और मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास करेंसी जाएगी, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल आल्सो राइज. अगर लोग कोई भी डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट नहीं कर रहे तो सारा का सारा राइज ये होगा. बट ऑन द अदर हैंड इफ पीपल क्रिएट डिमांड डिपॉजिट्स तो दीज रिजर्व्स माइट आल्सो राइज. सो बेसिकली एसेट्स जितना से बढ़ेंगे उतने से ही लाइबिलिटी विल हैज टू राइज, राइट? नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज सेंट्रल बैंक कितना पैसा क्रिएट कर सकती है. सेंट्रल बैंक सिर्फ ये जो यहाँ पर दोनों का सम है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक मनी. So this is basically the demand for central bank money. Say the central bank's money is either demanded by people to keep as currency, or what will happen, people will deposit that amount in banks, commercial banks, and these commercial banks will in turn give loans out of that. But when they are giving loans out of that, it will again become currency with the people, right? So out of these loans it is again getting in the market, but some amount will be left with the commercial bank, which is reserves. So if you sum total this is actually the demand for central bank money. तो अगर हमें पता लगाने की सेंट्रल बैंक कितना मनी का सप्लाई करेगा, तो दिस इज द amount that the central bank is going to supply to the supply in the economy. So let's understand this again from a layman point of view. So now what happens, people have certain currency. Now this currency, what would they do is they will keep, let's say, okay, let's not start with currency. Let's say that RBI prints certain money. Let's call it H, or let's call it monetary base. This is also called high powered money. Now, what will happen when RBI has printed this money? Now, what people will do is they will keep this amount either as currency, ये जितना भी उसने सप्लाई करा थोड़ा सा अमाउंट करेंसी में रखेगा और बाकी जो है सपोज डिमांड डिपॉजिट्स में डाल दिया. डिमांड डिपॉजिट बेसिकली बैंक में हमने इसको डिपॉजिट करा दिया. नाउ आउट ऑफ दीज डिमांड डिपॉजिट व्हाट वुड बैंक डू इज ये थोड़ा सा अमाउंट अपने पास एज रिजर्व रखेगा और ये जो बाकी अमाउंट है ये लोन दे देगा. जब ये लोन दे देगा ये अमाउंट, तो ये अमाउंट दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है. अब दोबारा जब करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, अब इस करेंसी में से दोबारा से लोग क्या करेंगे, कुछ पैसे ट्रांजैक्शन करेंगे,
कुछ पैसा अपना बैंक में डालेंगे। जब ये दोबारा से वो पैसा बैंक में डालेंगे तो अगेन जो पैसा बैंक में डालेंगे इधर वो लोन दे देंगे और या तो वो रिजर्व्स में चला जाएगा। अब ये जो लोन्स हैं उन्होंने दिया, ये दोबारा लोगों के पास जाएगा, जिससे या तो वो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन करेंगे या तो वो अमाउंट थोड़ा सा दोबारा से बैंक्स में डालेंगे। जब वो दोबारा से बैंक्स में डालेंगे तो वो ये पूरा अमाउंट अपने पास नहीं रखेगा, वो रिजर्व्स में डाल देगा थोड़ा अमाउंट, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो दोबारा से लोन दे देगा। और ये अमाउंट दोबारा या तो ऐसे करके एक साइकिल जो है वो रिपीट 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 होती रहेगी। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मनी क्रिएट सेंट्रल बैंक ने सिर्फ एच करा था, लेकिन हम ये देखते हैं ये मनी मल्टीपल टाइम्स जो है इकोनॉमी में घूम रहा है। तो यहाँ पर जब उसने एच अमाउंट क्रिएट किया था और स्टार्टिंग में करेंसी कितनी, सपोज सबने एज करेंसी ये रख दिया, इसमें से सी अमाउंट करेंसी रख दिया और से 1 - सी अमाउंट जो था डिमांड डिपॉजिट्स में डाल दिया। अब ये जो 1 - सी अमाउंट्स है इसका थोड़ा सा अमाउंट थीटा अमाउंट यहाँ गया रिजर्व्स के लिए, और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है इसका कहाँ गया, लोन्स में। अब इसमें से ये जो लोन्स है दोबारा से ये करेंसी बन गए, अब इसका भी थोड़ा सा अमाउंट करेंसी में बना एंड सो ऑन। तो हम जब ये देखते हैं कि फाइनली जो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट कर रहा है, राइट, लोन्स देने की वजह से जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में विच इज मच हायर देन द मनी दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय आरबीआई। सो दिस मनी ये जो क्रिएट हो रहा है बार बार सर्कुलेट होकर, इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। तो यहाँ पर जब हम ये चीज देखते हैं कि ये दोनों का जो सम है ये क्या है, सेंट्रल बैंक मनी, दिस इज द मनी, हाई पावर्ड money, that is the money created by RBI. But abhi what will happen is this money will go out, people will create demand deposits out of this, out of those demand deposits loan will be given which will again become currency and so on। तो यानी कि ये जो पेपर है, पेपर पे एग्जिस्ट करता है कि मेरे कितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं, 100 रुपीज आर डिपॉजिटेड विद द बैंक, बट बैंक ने क्या करा, 10 रुपए अपने पास रखे और 90 रुपीज जो है वो लोन दे दिया। अब ये जो 90 रुपीज है दोबारा क्या बन गया, करेंसी बन गया। तो अब ये 90 रुपीज जो है वो दो जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक, मुझे लग रहा है दैट दैट मनी बिलोंग्स टू मी, वाई, बिकॉज इट इज माई डिमांड डिपॉजिट। बट बैंक के पास फिजिकल फॉर्म में कितना पैसा बचा है, 10, 90 रुपए तो ये दोबारा से करेंसी बन गया, राइट। सो नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, तो हमारा जो करेंसी है वो 90 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर मेरा डिमांड डिपॉजिट्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, 100 से। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं इसको कहते हैं कि मॉनेटरी बेस बढ़कर क्या बन रहा है, मनी की सप्लाई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी बेस एंड मनी सप्लाई। और ये जो लाइबिलिटी साइड, हम जो सेंट्रल बैंक मनी बोल रहे हैं, डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी बोल रहे हैं, सप्लाई फॉर सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं, तो दिस इज द इनिशियल वन। ये सर्कुलेट होकर दिस विल ऑल्सो बिकम मल्टीप्लाई एंड इट विल ऑल्सो बिकम मनी सप्लाई। नाउ नेक्स्ट, so this was the balance sheet of the central bank. Now let's see what is the balance sheet of a commercial bank. Again, it has two sides, asset side and liability side. अब एक कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, सबसे पहले तो लोन देता है, लोन उसका एक एसेट होता है। कमर्शियल बैंक बॉन्ड्स कई बार सेल करता है, राइट, इफ इट विल, सो बेसिकली मे बी इट बाइज बॉन्ड्स, राइट, बाय बॉन्ड करेगा तो इट विल हैव टू गिव मनी, सो इट इज ऑल्सो एन एसेट। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर बोथ ऑफ दीज आर एज्यूम टू बी सेम, आई विल कम टू द रीजन ऑफ दैट। लोन्स एंड बॉन्ड्स इज एन एसेट। अब अगर किसी ने अपने पैसे रखे हैं कमर्शियल बैंक के पास, सो इट बिकम्स अ लाइबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। सो दिस इज दैट मीन्स डिपॉजिट्स आर अ लाइबिलिटी। जब भी बेसिकली किसी ने बोला कि रिटर्न माई मनी, सो इट विल हैव टू रिटर्न, सो डिपॉजिट्स आर अ लाइबिलिटी। अब क्या है, इस डिपॉजिट्स में से वो कुछ पैसा आरबीआई के पास रखता है एज रिजर्व्स, तो जब भी वो ये पैसा आरबीआई से मांगेगा आरबीआई को देना पड़ेगा, सो दैट इज इट इज वन ऑफ द एसेट्स। So this is how the balance sheet of a commercial bank looks like. Now we have both the balance sheet of RBI and balance sheet of commercial bank. With this, we start our basic model in which we will derive money supply and money multiplier. Starting,
वी नो दैट सेंट्रल बैंक का जो सप्लाई है दैट इज हाई पावर्ड मनी। अब सेंट्रल बैंक के मनी की डिमांड क्या है? दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक मनी, or we can also call it as demand for central bank money. It is nothing but this side. I've repeatedly repeated that. So now currency with the public, जितना public के पास currency है plus reserves. This is the demand for central bank money. This is the supply, this is the demand. So लोग कितना currency demand करेंगे अपने पास रखने के लिए? Now we know that अभी तक हमने एक टर्म पढ़ी, डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी क्या थी? बेसिकली जितना ये जो मनी है इसमें हमने कोई डिफरेंस नहीं करा कि ये पैसा लोग करेंसी में रख रहे हैं या तो डिमांड डिपॉजिट्स में रख रहे हैं, राइट? सो नाउ लेट्स से कि सपोज इस वाले में लोग इस पूरे जो मनी की डिमांड कर रहे हैं उसमें से सी अमाउंट, इसका जो सी प्रोपोर्शन है, सो फॉर एग्जाम्पल मेरी जो टोटल मनी की डिमांड है वो है 100 रुपए और मैं 10% अपने पास रख रही हूँ करेंसी और 90% मैं बैंक में जमा करा रही हूँ। तो इस केस में मेरा स्मॉल सी क्या है? 0.1। ठीक है, तो नाउ लेट्स एज्यूम दैट पीपल कीप सी proportion of money demanded as currency. So that means 1 minus C proportion कहाँ जाएगा? डिमांड डिपॉजिट्स में। नाउ इन दिस केस अगर मुझे C निकालना है, सो हाउ वुड यू फाइंड द डिमांड फॉर करेंसी? टोटल जो C इंटू दिस इज द डिमांड फॉर करेंसी। क्यों? ये टोटल मैंने मनी का डिमांड करा और करेंसी का किसके लिए करा? C proportion. So this becomes small c into YLI. Simple derivation. Now, out of this, how much amount of money goes in demand deposits? ये मनी की जितनी डिमांड करी उसमें से 1 माइनस सी प्रोपोर्शन गोज इन डिमांड फॉर डिपॉजिट्स। अब हमें पता है कि ये जब डिपॉजिट्स आए तो कमर्शियल बैंक को थीटा अमाउंट एज रिजर्व्स रखना पड़ेगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को बोला कि थीटा अमाउंट आप अपने पास रखो। तो यानी रिजर्व्स की डिमांड क्या होगी? जितना डिमांड डिपॉजिट्स आया उसका थीटा अमाउंट इनको अपने पास रखना है। तो थीटा इंटू डिमांड डिपॉजिट्स की इक्वेशन क्या है? दिस इज आर। सो ना यहां पर एक इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे 1। ये हमने स्टार्टिंग में डिफाइन करी। इस इक्वेशन को 2 बोलेंगे और इस इक्वेशन को हम 3 बोलेंगे, राइट? सो नाउ लेट्स पुट 2 and 3 in 1। वन इक्वेशन क्या थी? एच डी इज इक्वल टू सी प्लस आर। सी अभी अभी हमने डिराइव करा है ऐसा, यू कैन चेक इट। आर देख लेते हैं हमने क्या डिराइव करा है। दिस इज व्हाट यू हैव डिराइव फॉर आर। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम में डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर सेंट्रल बैंक मनी। ये क्या था? हमारा मॉनेटरी बेस। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इसमें हम सेफली वाई एल आई जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर क्या बचा? सी प्लस थीटा 1 माइनस सी इज इक्वल टू एच, राइट? सो अब हम क्या करेंगे इसमें? एच अपॉन सी प्लस थीटा 1 माइनस सी। अब ये जो एच क्या था? मॉनेटरी बेस, जितना आरबीआई ने प्रिंट करा था। लेकिन अब हमें पता है कि मल्टीपल टाइम्स जो है सर्कुलेट हो जाएगा। अब इसमें हमें पता है कि ये जो सी की वैल्यू है इट इज बिटवीन 0 to 1, लेट्स एज्यूम, और ये थीटा की वैल्यू भी 0 to 1 है। तो इन दिस केस ये जो पूरा टर्म यहां पर आएगा एच अपॉन दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन थीटा। वाई? सी 0 पॉइंट समथिंग प्लस 0 पॉइंट समथिंग, ये सब जो है ये जो आएगा दिस विल बी ग्रेटर देन योर इनिशियल
मॉनेटरी बेस. नाउ इफ यू लुक इनटू दिस प्रॉपरली, वी नो, हमें पता है, हमने जो पुराने इक्वेशन डिराइव करी, हमें पता है मनी की डिमांड इज इक्वल टू मनी की सप्लाई. ठीक है. अब मनी की डिमांड क्या है? वाई इंटू एल आई, और दिस इज योर एम. वी नो दिस. अब अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, स्टार वाली इक्वेशन से मैच करो, तो अगर आप देखोगे यहां पर, दिस इज नथिंग बट द डिमांड फॉर मनी. तो अब मैं इस वाली इक्वेशन से कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाली हूं इस स्टार वाले में. तो मैं ये वाली इक्वेशन स्टार में पुट कर रही हूं. So in this case, what you will see is that M is nothing, that is the, ये क्या है, money supply is nothing but H upon C plus theta. So this is your supply for money. So in this case, what we notice is that ये वाला जो portion है, ये it is the multiplier effect that happens on H. H was the monetary base which is getting doubled and it is creating money supply which is much higher than this H. So now in this case, what we do is we define money multiplier as 1 upon C plus theta 1 minus C. This is your money multiplier. So what we see in this case is that central bank creates H amount of money, right? But यहाँ जो MS है, अगर हम C की कोई भी वैल्यू लेके इसको सॉल्व करते हैं, so let's solve it. Let's take C is equal to 0.5 and let's take theta is equal to 0.1. So let's solve this. और H ले लेते हैं 100. तो अब इसमें मनी सप्लाई क्या आएगा हमारा? H अपॉन C की वैल्यू है 0.5 प्लस 0.1 और ये 0.5 आ जाएगा इफ यू डू 1 माइनस सी. 100 अपॉन 0.5 प्लस 0.05. 100 upon 0.55. So if you divide it, let's divide it. It comes 181.81. So हम ये देखते हैं कि money supply is much greater than H. That means जो पैसा उसने क्रिएट किया था, प्रिंट किया था सेंट्रल बैंक ने, वो मल्टीप्लाई होके इट बिकम्स दिस मच अमाउंट, right? So why? Because money, this is the money multiplier in this case. Now here, one thing to notice, come to this equation. This is like our main equation, ठीक है? Before we interpreted कि ये हमारा कुछ नहीं है, ये money supply होगा. This is like our equation of equilibrium. Now what happens is, in this case, हमने स्टार्ट किससे करा था? वी स्टार्टेड विद द फैक्ट दैट डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, राइट? अब ये जो था, जब हमने सॉल्व करा तो हमें ये पता लगा दैट इट इज नथिंग बट दिस इक्वेशन. जब हमने सॉल्व करा हमें पता ये मनी सप्लाई है, अगर ये वाला इक्वेशन, सो इट इज नथिंग बट दिस पोर्शन इज मनी डिमांड एंड दिस पोर्शन इज मनी सप्लाई. तो दोनों इक्वलेंट है. तो जब हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर, तो हम मनी डिमांड, जस्ट अ मिनट, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई जब हमने करा था, तो एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था. तो जब इंटरेस्ट रेट निकालने का ये एक तरीका है, जो सेकंड मेथड है, दैट इज this is supply for high powered money, okay, and this is your demand for high powered money. और ये ROI यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर just a minute, this is your central bank money which is H. सो दिस अगेन गिव्स यू द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि अगर हम इक्वेशन वाइज भी देखें तो वन थिंग इज इक्वल टू द अदर थिंग. सो दिस इज अनदर वे. इसमें बैक क्वेश्चन में काफी न्यूमेरिकल्स भी हैं जिन्होंने दिखाया है कि ये मेथड से करो या वो मेथड से करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम आना चाहिए. सो डोंट मिस द बैक क्वेश्चन इन दिस केस.
नाउ वी मूव टू, ये जो मनी मल्टीप्लायर हमने डिराइव करा, वी मूव टू सम स्पेशल केसेस ऑफ दिस. वन ऑफ द स्पेशल केस दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द रीडिंग्स is that suppose people do not hold currency, people hold everything in demand deposits. तो यहाँ कोई भी हम पब्लिक जो है वो करेंसी नहीं होल्ड कर रही, सब पैसा डिमांड डिपॉजिट्स में जा रहा है. तो इस केस में तुम्हारा जो एच डी है, यानी डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी, क्या था? करेंसी प्लस रिजर्व्स. पर अब यहाँ पर लोग कुछ पैसा करेंसी में रख ही नहीं रहे, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? रिजर्व्स. तो यहाँ रिजर्व्स की डिमांड हमें पता है क्या होती है. रिजर्व्स की डिमांड जो होती है, सबसे पहले हम डिमांड डिपॉजिट्स की डिमांड निकाल लेते हैं. तो यानी यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स कितने होंगे? इज इक्वल टू टोटल मनी डिमांड, राइट. जितना भी मनी की वो डिमांड करेंगे, वो अपने पास कुछ करेंसी रखेंगे ही नहीं, सब कुछ डिमांड डिपॉजिट्स में रख देंगे. सो दैट मीन्स द टोटल मनी डिमांड बिकम्स द डिमांड फॉर डिमांड डिपॉजिट्स. अब इसमें से रिजर्व्स कितने क्रिएट होंगे? थीटा इंटू डी डी, वी नो. थीटा इंटू एल, एल वाई. दीज आर द रिजर्व्स दैट आर क्रिएटेड. Now we know that HD is equal to R, which is theta into L. So this is your demand for central bank money. Now we know that in equilibrium, HD is equal to HS, right? So let's equate them. HD हमने क्या निकाला? ये. और H क्या है? ये. Now let's move this. We know that in equilibrium, MD is equal to MS, and MD is this portion. So this ms इज इक्वल टू एच बाय थीटा. तो इस वाले केस में हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या है? 1/थीटा. वाई? बिकॉज इन दिस केस सी इज इक्वल टू 0. अब इसको दूसरा मेथड इसको करने का क्या था? इस पूरे ये जो हमने पहले करा था इसमें सी की वैल्यू 0 रख देते तो इजी वे आउट था. बट इस वाले केस में व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट सॉल्व इट कंप्लीटली. नाउ इन दिस केस ऑल्सो, अब हमें पता है कि दिस इज योर एच एस एंड दिस इज योर एच डी. दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. इस वाले केस में जो डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक करेंसी है, दैट इज नथिंग बट डिमांड फॉर रिजर्व्स. सो एक तरह से ये जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ये रिजर्व मार्केट का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है करेंसी होल्ड ही नहीं कर रहे. So this becomes the equilibrium for this kind of market. Now, as a homework, what you can do is repeat this case when C is equal to 1. Find the money multiplier when C is equal to 1 and find the money supply when C is equal to 1. Don't forget to practice the back questions. This finishes the concept of money multiplier. Now we move on to the next topic, which is your relationship between bond prices and rate of interest. Now suppose I bought a bond और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है. तो दैट मीन्स जब when I bought a bond, I buy a bond, जब मैंने बॉन्ड खरीदा तो मैंने उसके लिए आई पेड आउट सर्टेन मनी. वॉट आई पेड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड. तो यानी देर इज एन आउटफ्लो. आई डोंट पे 100. 100 फेस वैल्यू, मतलब जब बॉन्ड मेच्योर होगा तो मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा? 100. लेकिन आज मैंने उसके लिए कितना पैसा दिया? आई पे आउट पीबी. तो जब मैंने उसको पीबी दिया, अब इस ऑब्वियसली अगर मैंने बॉन्ड बाय करा है और मैंने पीबी अमाउंट दिया है, सो दैट मीन्स उस पर मुझे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा. दैट्स वाई आई एम बाइंग द बॉन्ड ना. सो उस पर मुझे से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आई. किस पे मिलेगा? पीबी इज इक्वल टू 100, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू क्या है? 100. वो बॉन्ड मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर डेट में वो मुझे $100 देगा. अब इसमें लेट्स सॉल्व दिस. व्हाट वी विल डू इज पीबी को कॉमन लेकर, जस्ट अ मिनट, we have to find the value for I. 100 upon PB, 100 upon PB minus 1. I is equal to 100 minus PB upon PB. अच्छा, अब इस इक्वेशन में किसी भी तरह सॉल्व करके देख लो, यू विल फाइंड दैट देयर इज एन इनवर्स
relation but between रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड. अब इसका इंट्यूटिव मीनिंग समझते हैं. हमने मैथमेटिकली तो इसको कर लिया. सो नाउ सी, फेस वैल्यू 100, यानी कि फ्यूचर में मुझे एक बॉन्ड है जो $100 दे रहा है. अब एक जो बॉन्ड था, आई बॉट दैट बॉन्ड फॉर से ₹80. तो यानी मैंने आज किसी को कितने दिए? ₹80. और फ्यूचर में मुझे कितना मिल रहा है? 100. सपोज आज मैंने उस बॉन्ड के लिए दिए ₹90 और फ्यूचर में मुझे कितने मिल रहे हैं? 100. तो अब दोनों केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. 100 माइनस 80 अपॉन 80. आई वुड बी 20 अपॉन 80, 1/4. Into 100 you can. Now in this case, 10 upon 90. Just a minute, let me find this out. This would be some 11.1111%. ठीक है. So in this case, सी प्राइस ऑफ बॉन्ड किस केस में ज्यादा था? इसमें. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ये ऑफर कर रहा है मुझे? कम. सो बेसिकली यहाँ पर ₹80 देकर मुझे ₹100 मिल गए, यहाँ पर मेरे को ₹90 देकर $100 मिले. सो दैट मीन्स इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है इस बॉन्ड का वो कम है एज कंपेयर टू दिस. तो जब ये प्राइस ऑफ बॉन्ड, अगर हम प्राइस ज्यादा दे रहे हैं और हमें सेम अमाउंट मिल रहा है दोनों केसेस में, तो नेचुरली दैट मीन्स द बॉन्ड इज पेइंग अ लेस लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज द इंट्यूशन बिहाइंड दिस फॉर्मूला. Now let's move to the last topic, which is the liquidity trap. So this was a concept which came during the Great Economic Depression, and it was given by Keynes. Okay, so this concept was given by Keynes. So this was a time when people were holding a lot of money. So अभी हमने ये देखा कि जब हम मनी की डिमांड की बात करते हैं तो दिस इज द डिमांड फॉर मनी, राइट. बट अब कुछ पैसा जो है वो लोग बॉन्ड्स में रखते हैं और कुछ पैसा अपने पास रखते हैं. अब अगर सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स का जीरो हो जाए या कह लो नेगेटिव हो जाए, तो व्हाट विल पीपल डू इज they will keep all the amount as money. Why would they keep in bonds if money pays you no rate of interest? So that was a situation that happened, and this situation was called the liquidity trap. Liquidity trap, people had lot of money with them, but the basically the interest rate on bonds was so low, 0%. It was not paying any rate of interest, that people preferred to keep the money as demand for money. They prefer to keep the money with themselves. So this is a situation where this is your demand for money, right? And this is your money supply, right? So in this case, obviously, if it goes down, it goes like this, the rate of interest would be negative. But now economists, they imposed a condition of on rate of interest that it cannot be less than zero. So this cannot happen. So ROI has to be greater than or equal to zero. Just a minute. So in this case, economists imposed a zero bound condition where rate of interest cannot fall below zero. So it has to be greater than or equal to zero. So now this was the overview of liquidity trap. So let me give you how it originated, right? So starting from 1930s, right? This idea was given by Keynes. So liquidity trap is essentially a situation in which people are hoarding cash. So that means they are not investing in bonds, right? And the rate of interest of bonds is very low, right? Another condition. Another condition, see, we know that when rate of interest is very low, investments would rise. But that is also not happening in the economy. Another thing,
In this case, when central bank is increasing money supply, so we saw here that this was the money demand. Just a minute. This is the money demand. So suppose this is the money supply. They touch here at zero rate of interest. So in this case, ROI is equal to 0. Now in this case, if central bank increases money supply, which has happened in many situations, ki even if the ROI is 0, central bank continued to increase money. Now if they're still increasing money supply, now we have a condition on rate of interest, which is zero bound condition. In the readings, it is known as zero lower bound. That is, that rate of interest cannot fall below 0. So in this case क्या होगा, MD curve इस point के बाद ऐसे हो जाता है. So that means it cannot fall below 0 rate of interest. In this case, central bank might be increasing money supply बढ़ी जा रहा है, लेकिन rate of interest जो है वो 0 ही है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो रहा. तो अब जब rate of interest 0 ही है, तो लोग क्या करेंगे, कैश होल्ड करेंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बावजूद इकोनॉमी में पेसिज्म का माहौल है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स आर नॉट इन्वेस्टिंग. When money supply is increasing, we know that there is inflation in the economy, but now people are not even demanding goods. So that means output भी नहीं बढ़ रहा, prices भी नहीं बढ़ रहा इस केस में. So this is a situation when money is growing, and people are using all the money to hoard cash. They are neither investing, they are neither demanding goods, and neither there is inflation in an economy. In fact, what we have seen is that there have been instances of deflation in the economy when this thing happened. एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पर ये जीरो बाउंड कंडीशन नहीं लगाते इकोनॉमिस्ट, तो पहले इकोनॉमिस्ट ने सोचा ये कंडीशन बहुत ही इररेलेवेंट है, दिस वुड नेवर हैपन. बट व्हेन दिस सिचुएशन हैपेंड, सो वी रियलाइज दैट देयर कैन बी अ सिचुएशन जब ये वाली कंडीशन हमें इन्वोक करने का चांस मिल जाए. सो दिस इज अ कंडीशन दैट हैज बीन इम्पोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट. जरूरी नहीं है ये हमेशा सच हो इकोनॉमी वाइज, बट देन इट्स अ कंस्ट्रेंट. Now, the question is that this was a part of your readings, but if we look into the fact that why it is rising, if we dig deeper that why is this situation happening, so in this case, what is happening is there is a sense of negativity in the economy, pessimism in the economy, low confidence in the economy. These things happen during time of recessions. So 2008 May, this thing happened in the US economy, liquidity trap. So interest rate was close to 0% during that time. And what was happening in that time? People were holding cash. There was no demand for bonds. People were holding cash and keeping them as demand deposits and currency. So we saw during this period that demand for demand deposits rose. Why? People were keeping this money in form of demand deposits and not buying any bonds. Also, when money supply, the Fed in this case kept increasing money supply. So the question is, why would Fed keep increasing money supply in this case? Why? Because this is a time of a recession. They have to show confidence in the economy. They have to do that to prevent the collapse of banks. They have to tell investors that we are putting in the money, you invest. So they are just giving a certain kind of optimism to the economy. So this becomes important even when we don't see any effects of this policy happening. So they have to prevent the economy for much more dangerous things like a bank collapse, like uh, collapse of the stock market. So they have to keep supplying more and more money, no matter if people are holding cash. Another situation this might happen is war situation. So now we all know that currently there is a war going on. So in this situation, people don't prefer to invest in bonds or anywhere. People would want to hoard money. But now in this case, in a war situation, when there is no demand for bonds, what would happen? The price of bonds would fall and rate of interest on bonds might rise, right? I'm not just talking of the war situation, but in any other situation as well, rate of interest might be high, right? And then also people might not want to buy bonds, they would want to
hoard money. That might be a war, that might be a possible deflation. And we have seen this hoarding during COVID times. So people might want to hoard money even when rate of interest is not zero. And in fact, जब कीन्स ने originally ये theory दी थी, तो उसने बोला था the only part that is important for a liquidity trap is that मनी सप्लाई इज राइजिंग बट आरओ हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा एंड पीपल आर होल्डिंग मनी. अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि जीरो होगा, जो कीन्स की ओरिजिनल थ्योरी थी, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म में काफी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि लिक्विडिटी ट्रैप हम तभी डिफाइन करेंगे किसी सिचुएशन को जब आरओआई विल बी टिपिकली इक्वल टू जीरो. बट जब ओरिजिनली कीन्स ने थ्योरी दी थी तो उसने ये नहीं बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होना ही चाहिए. उसके हिसाब से तो ओनली कंडीशंस वर कि एक इकोनॉमी का उस कीन्स की अगर हम ओरिजिनल थ्योरी की बात करें तो दिस इज योर मनी डिमांड फंक्शन, दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली वुड बी लो. Now it is near zero but not exactly zero according to Keynes original. Now in this case अगर आप मनी की सप्लाई बढ़ा भी रहे हो तो हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है. जस्ट अ मिनट, दिस इज नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस वुड बी दिस ना. सो मनी की सप्लाई अगर हम बढ़ा भी रहे हैं सो व्हाट वी सी इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये ओरिजिनल कीन्स ने बोला था, लेकिन इसके बाद इसको क्रिटिसिज्म रिसीव हुआ और हमने बोला कि जब हम लिक्विडिटी ट्रैप की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी डिफाइंड इक्वल टू जीरो, ओनली देन वी विल कॉल इट लिक्विडिटी ट्रैप. इसी वजह से काफी इकोनॉमिस्ट ये लिक्विडिटी ट्रैप को मानते ही नहीं है, ये प्रिवेल करता है. ओरिजिनल कीन्स ने बोला दैट मनी डिमांड वुड लुक लाइक दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, मनी सप्लाई आप बढ़ाते रहो, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट चेंज, पीपल विल होल्ड मनी एंड मनी सप्लाई बढ़ाने से प्राइजेस भी नहीं बढ़ेंगे. इनफैक्ट दिस इज अ सिचुएशन जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन के चांसेस होंगे, यानी प्राइजेस कम होने के चांसेस होंगे. So this was all about liquidity trap. It is a very, very important topic, not just from the exam point of view, but also from the point of view of any competitive exam or anything. So don't miss this topic. If you have any doubts in this topic, you can obviously ask me, and don't forget to do the numerical. So if I have to tell the important things about this unit is a very, very important unit. Now the important things, हमें पता है we have done the functions of money. Then we have discussed the, इस वाली वीडियो में नहीं करा बट जनरली करा हुआ है डिस्कस. देन वी हैव मॉनेटरी एग्रीगेट्स जिसमें हमने M1 और M2 की बात करी, इसके एग्जाम्पल्स. ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम चैप्टर 7, उसका 7.1 सेक्शन एबल का. उसके बाद जो मेजर चीजें हमने करी है कि मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई विल गिव यू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. सो ये वाला जो इसका जो मनी डिमांड का, इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी डिमांड और मनी सप्लाई से कैसे डिटरमिन होता है. इसके सारी जब हम थ्योरी लिखते हैं तो इसको अच्छे से लिखना भी आना चाहिए अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हैं, हाउ डज सेंट्रल बैंक यूज ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी मल्टीप्लायर. अब जरूरी नहीं है इस वाले केस में कि वही वाला केस करें दे जो हमने दिया है. इस केस में यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द केसेस. एक में c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, या तो c कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 1. तो मनी मल्टीप्लायर ऑल द 3 केसेस. उसके बाद इसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एच डी इज इक्वल टू एच एस, हमने किया था, इस वाले से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो सकता है. तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है विद द थ्योरी पार्ट. देन वन लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इज liquidity trap. Very very important again. In case you are stuck in this topic, you are free to ask. ये टॉपिक थोड़ा कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है. देन एक और करा था हमने, इनवर्स रिलेशन between price of bond and rate of interest. So with this you have to cover the theory part of all this as well as the numerical part. Very very important chapter. Numerical has been asked like anything. You can look into the past years, you can look into the back questions, that would be more than enough, but provided that you cover the entire reading. So that was all about unit 5.